अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। ओके प्रेप क्लास, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. Okay, who is going to tell me about the date? What is the date today? Arush? Today is 18th November 2024. Shabash. And who is going to tell me about the Arabic date? Zimal? शाबाश. 15 जमादिउल अव्वल 1446 हिजरी. बिल्कुल ठीक. Right, Zimal? And now, who will tell me about the day? Yes, Zarun? You're right, it's Monday. और उसको मंडे को अरबिक में क्या कहते हैं? यौमुल स्नैन. बिल्कुल सही. एंड व्हाट इज मंडे इन उर्दू? उसको उर्दू में क्या कहते हैं? पीर. शाबाश. नाउ एवरीवन लुक आउट ऑफ द विंडो एंड टेल मी अबाउट द वेदर. हाउ इज द वेदर आउटसाइड टुडे? It's a cloudy day and it's a little bit foggy as well. As you all know, nowadays there is a mixture of fog and smoke and it becomes together smoke. So it's a little bit smoggy and foggy, you can say. Alright. Now who will tell me about what we had done yesterday? Yes, we had revised about use of this and that. ठीक है कि हम this को उर्दू में क्या कहते हैं? ये. As you can see, this का उर्दू में मतलब है ये and that means वो. ठीक है. We use this for the things that are near to us. शाबाश. And we use that for the things or objects that are far from us. बिल्कुल सही. यानी जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, नियर होती हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं this. और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं, far होती हैं, उनके लिए we use that. ठीक है. Now who will tell me कि this और that का friend कौन बनता है? Is. शाबाश. And what is the meaning of is in Urdu? उसको उर्दू में क्या कहते हैं? है. बिल्कुल सही. एंड इज अ ट्रिकी वर्ड. ठीक है. ये एक ट्रिकी वर्ड है बिकॉज इट इज़ नॉट फॉलोइंग जोलीफोनिक साउंड्स. नाउ यू हैव रिवाइज दिस एंड दैट. नाउ यू कैन से कि दिस और दैट कितनी चीज़ों के लिए यूज़ होता है? शाबाश प्रेप क्लास. एक चीज़ के लिए. जब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ होती है तो वी यूज़ दिस अगर वो पास में है, और अगर एक ही चीज़ है लेकिन हमसे दूर है तो हम यूज़ करेंगे दैट. ठीक है. एंड विल यूज़ अ और एन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स नेम. अगर वो वाउल से स्टार्ट हो रही है तो विल यूज़ एन. अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो विल यूज़ अ. ऑलराइट. एंड हाउ मेनी वाउल्स वी हैव? 5. Which one? A, E, I, O, U. 5 vowels. ठीक है. A, E, I, O, U. Now we'll move toward our topic for today, which is introduction to these and those. ठीक है. That's the reason I have revised you about this and that, क्योंकि this and that से related ही ये दोनों terms आते हैं, these and those. ठीक है. अब ये कब यूज़ होते हैं एंड इसके लिए हमने क्या चीज़ें देखनी है, इनका फ्रेंड कौन होता है, we'll discuss and I'll give you a little introduction about this topic today. Are you ready, prep class? Alright, prep class. Open your English notebooks and write date, which is 18th November 2024 on the left side of your page, and write classwork in the middle of your page, and right on the rightmost side you need to write the day, which is Monday.
Ready your pages, write date, day and classwork. Then under the classwork, you need to write the topic, which is introduction of these and those. Okay? Okay, I'm giving you a few minutes. Ready your pages, then we'll discuss what is the meaning of these and what is the meaning of those, and when we use it in our sentences, and how can we use these and those into sentences. Okay, prep class. Now look at the number 1. ठीक है, अब हमने यहाँ एक word लिखा है. I have write the, because it's a magic E and magic E is doing magic on this E, and it will say its name. And when S is stuck between two vowels, its sound changes Z. जब ये S 2 vowels के दरमियान में होता है तो इसका sound S नहीं होता, Z बन जाता है. ठीक है, the, E, Z, these. Alright, these का उर्दू में क्या मतलब होता है? You can read ये. शाबाश. these का मतलब होता है उर्दू में ये. और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जो चीज़ें हमारे पास होती हैं. ये तो दिस के जैसा ही हो गया. जैसे दिस हम यूज़ करते हैं उसी तरह दीज का भी वही मतलब बन रहा है. लेकिन डिफरेंस इज दिस दैट वी यूज़ दीज फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर मोर देन 1 इन नंबर. एक से ज़्यादा हों. क्योंकि दिस तो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है. जैसे मैं कहती हूँ दिस इज़ अ बोर्ड. ठीक है, दिस इज़ अ बोर्ड. यू कैन सी कि ये एक ही वाइट बोर्ड है क्लास में. ठीक है, सो दिस इज़ अ बोर्ड क्योंकि ये एक है. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट मोर देन 1 इन नंबर, like you can see here, these are 2 boards. ठीक है, यानी कि ये एक यहाँ है और एक यहाँ है. सो जब एक से ज़्यादा चीज़ हो जाए और वो चीज़ हमारे पास हो तो विल यूज़ दीज. ठीक है, जब चीज़ें ज़्यादा हो जाएं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, यानी कि बस एक ना हो, एक से ज़्यादा हो. सो यू नीड टू राइट कि जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, यू कैन रीड इट थ्रू तोड़ के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं. ज़्यादा, हा, ज़्यादा. ठीक है, तो जब चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होती हैं, एक से ज़्यादा हो जाती हैं और वो चीज़ हमारे पास होती है तो हम यूज़ करते हैं दीज. ठीक है, सो आई विल नॉट से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ. लाइक यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर मेरे पास कुछ मार्कर्स हैं और ये एक से ज़्यादा हैं. यू कैन काउंट 1, 2, 3. तो जब एक से ज़्यादा चीज़ हो और हमारे पास हो तो आई विल से these are markers. ठीक है, I hope the concept of these is clear to you now. Now we'll move towards number 2, and here the word is the sound of th, the. Again, magic is doing magic on the previous vowel, and it will say its name. The, o, and s is stuck between 2 vowels. You can see S जो है वो 2 वाउल्स के दरमियान में फंस गया है तो वो साउंड चेंज कर लेगा. व्हाट साउंड विल बी S will change to Z. शाबाश. The, o, z, those. Now you can read the word and write it as well through phonics. आपको पता लग जाएगा कि जी ये मैजिक ही ने मैजिक किया हुआ है तो यहाँ पे इसका नाम आएगा. और यहाँ पर S ने क्योंकि 2 वाउल्स के दरमियान में स्टक है तो इट साउंड विल चेंज टू ज. द, ओ, z, दोज. एंड द मीनिंग ऑफ दोज इन उर्दू इज वो. बिल्कुल, जो दैट होता है वो चेंज हो जाता है दोज में व्हेन द थिंग्स आर मोर देन 1 इन नंबर. जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं ना तो दैट कहता है जी मैं जा रहा हूँ अपने घर. ठीक है, दैट कहता है मैं जा रहा हूँ अपने घर क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं तो मेरा काम नहीं है. तो फिर दैट चला जाता है और उसकी जगह उसका फ्रेंड आ जाता है दोज.
ठीक है, दोज का मतलब भी होता है वो, और ये भी यूज़ होता है उसी की तरह दूर वाली चीज़ों के लिए। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, द डिफरेंस इज जस्ट दिस दैट द थिंग्स आर मोर देन वन इन नंबर, कि वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, तो विल यूज़ दोज। दोज का मतलब दूर वाली चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक यू कैन सी दोज आर सम बटरफ्लाइज हैंगिंग इन आवर क्लासरूम। अभी बटरफ्लाइज हमारे पास नहीं है, दूर है। देखो, यू कैन सी हेयर एज वेल कि ये जो तितलियां हैं, दीज जो बटरफ्लाइज आर फार फ्रॉम अस, हमसे दूर हैं, तो विल यूज़, और एक से ज़्यादा हैं। सी हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। दैट मीन्स दे आर फार फ्रॉम अस, वो हमसे दूर बनी हुई हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो इट विल बिकम दोज। फिर हम ये नहीं कहेंगे दैट इज़ अ बटरफ्लाई, नहीं, ये नहीं कहेंगे, बिकॉज वो एक तितली नहीं है, दे आर सो मैनी। तो फिर विल यूज़ दोज आर बटरफ्लाइज, ठीक है, कि वो तितलियां हैं। सी यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दोज। दीज यूज़ होता है जो चीज़ हमारे पास बनी होती है और ज़्यादा होती हैं। सिमिलरली दोज यूज़ होता है जो चीज़ें हमसे दूर बनी होती हैं और ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दिस और दैट तो फिर घर चले जाते हैं ना, वो कहते हैं जी हम घर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एक चीज़ नहीं है, यहाँ तो ज़्यादा चीज़ें हैं, तो यहाँ दिस की जगह उसका फ्रेंड आ जाता है दीज, और दैट की जगह उसका फ्रेंड आ जाता है दोज। Now I'll show you the same example which I showed you for explanation of these. अब देखें, then I was standing near to the markers like this, and I can say these are markers, 1 2 3. So these are markers. क्योंकि मैं इनके पास हूँ और ये ज़्यादा हैं, तो I use these. But when I go away from them, अभी मुझसे दूर हो गए, you can see, तो what should I use now? Those. शाबाश, those are markers. इसका मतलब क्या है कि वो हमसे दूर हो गए ना, तो I will say those are markers, कि वो markers हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हो गए हैं, तो वो अब एक चीज़ तो नहीं है और मुझसे दूर हो गई है। Similarly you can see these are markers, and when I move away, those are markers. I hope it's clear now, prep class. Now we'll move towards the next step of number 3, that who becomes a friend when these and those are using in a sentence. तो उनका friend कौन बनता है? जैसे this और that का friend था, who will tell me who is the friend of this and that? I try to make this thing easier for you, that you can understand it, कि जब this और that होता है एक चीज़ के लिए जो यूज़ होता है, this यूज़ होता है एक चीज़ जो पास में होती है, and that यूज़ for one thing that are far from us, तो उनका इमीडिएट फ्रेंड फ़ौरन जो उनका फ्रेंड बन जाता है, जो कहता है जी नेक्स्ट आपके बाद मैं ही आऊँगा, यानी कि this लगेगा तो उसका नेक्स्ट इज़ ही आएगा, that होगा तो इज़ ही आएगा। सो this और that का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो होता है इज़। Similarly here, who is the friend of these and those? अब इनका भी एक friend है, तो that obviously that means these and those must have one friend. अब इनका कौन friend है? You can see it's a tricky word as well. जैसे is एक tricky word है, ये भी एक tricky word है, और उसको हम पढ़ते हैं सिर्फ R, E का sound नहीं आता, सिर्फ A और R का sound होता है, two-lettered sound, R. So the friend of these and those कौन बनता है? R. Alright, I hope it's clear now कि this और that का friend होता है is, और these और those का friend बनता है R. And the meaning of R in Urdu is हैं। शाबाश, R का उर्दू में मतलब होता है हैं। जैसे ये लड़के हैं, वो घड़ियाँ हैं, ठीक है, वो दरख्त हैं। जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनके लिए तो हम हैं यूज़ करते हैं, और दीज और दोज यूज़ ही उन चीज़ों के लिए होता है जो एक से ज़्यादा होती हैं, लाइक दे आर मोर देन वन इन नंबर।
ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि दीज और दोज का फ्रेंड हमेशा आर बनता है. तो जब भी आप दीज लिखेंगे नेक्स्ट आर आएगा. दीज आर, दोज आर, और आगे जो भी चीज़ होगी उसका नाम. नाउ द लास्ट थिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज़ कि जो भी चीज़ का नाम होता है वो सिंगुलर यानी एक नहीं रहता, वो प्लूरल यानी ज़्यादा बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीड कैट. कैट, अब कैट का मतलब तो एक बिल्ली है ना. अब ज़्यादा होंगी तो यूज़ कैट्स. विल ऐड वन एस एट द एंड, यानी कि जो वर्ड होगा उसके एंड पे एस का इजाफा करेंगे. ठीक है, तो इट विल बिकम कैट्स यानी बिल्लियाँ. दीज आर कैट्स. ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे दीज आर कैट, ये तो नहीं होगा क्योंकि कैट का मतलब तो एक बिल्ली है. और दीज और दोज तो यूज़ होता है जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं. दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं. इसी तरह जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है. मैंने आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल दैट इट कुड बी अ कैट, इट कुड बी अ बॉल. तो अगर बॉल हैं और ज़्यादा हैं तो व्हाट डज इट बिकम? बॉल्स. विल ऐड एन एस एट द एंड. ठीक है, those are balls. In the next lesson we'll do some singular plural as well so that you can understand it के अगर एक चीज़ होगी तो वो क्या होगा और ज़्यादा चीज़ें होंगी तो एंड पे एस का इजाफा करेंगे. ठीक है, जिस तरह कैट के आगे मैंने एस लगाया तो ये कैट्स बन गया. बॉल के आगे एंड पर एस लगाया तो ये बॉल्स बन गया. ऑलराइट प्रेप क्लास, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू नाउ. आपने क्या करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस using these and those into sentences. अपने घर में, अपने रूम में look around into your environment, into your surroundings and try to make sentences. Like अगर चीज़ पास में और ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप you'll use these are, जो भी चीज़ का नाम है. अगर चीज़ें दूर हैं, ज़्यादा हैं तो you'll use those are, जो भी चीज़ें. Like toys हैं, बहुत दूर पड़े हुए हैं तो you'll say those are toys. These are biscuits. Anything, कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है. ठीक है, see you in the next class. I hope this concept is clear to you now. Allah Hafiz.